Good morning to all. I am Mohammad Navees sir and welcome to Fajandar Junior College, Vohur, Department of Sociology. We have already started the topic segments of Indian society. In that we have to see the second part of the chapter, that is rural community. Now we are to see the definition is given by the rural community is given by the A.W. Green. Community is a cluster of people living The definition is a village community or rural community is a cluster of people living within a narrow territorial radius which shares common way of life. Now we have to know that the many of the villages we are seen around us, there are our junior colleges also in a village, okay, in rural community. So the rural community is a very narrow territory, means small in size. Near about, according to 2011 census, 5,000 population is the village. Maximum population of the village is 5,000. And in India, 8.84 84% populations of Indian society are living in the villages, and there is a 6.4 lakh villages are found in India. How many? 6.4 lakh. So there are 6.4 lakh villages are occur in the Indian community. So here there is a village community and rural community is a bigger and huge. There is near about 70% populations are living in the villages, and remaining 30 are living in the cities, or that is a tribal community. Now next is the characteristics of rural community.
First characteristic is community living in a village. Community living in a village. The rural community are living in the villages or in the small territories. They are living in the villages or small territories, and they are like to living in the village, and they are doing the small profession for living, and they are like to living in the villages. Next is small size. We are known that according to 2011 census, the population of the village is near about the 5,000, means that is in the small size. We are very well know our Indian population is 130 crores, but the village population is maximum to maximum there is 5,000 peoples. So the villagers or rural community is small in size. Number third is dominance of agriculture. There is a dominancy is found dominancy of agriculture is found in the rural community. The many of the near about 80% peoples of the villages are depend on the agriculture, and remaining percents are also the profession depends on the agriculture. So totally the 100% populations are depend on the agriculture. There is a 80% is depend on the agriculture, and 20% are depend on the profession that are depend on the agriculture. So dominance of agriculture is found in the rural community. Next is primary relations. We are seen also in 11th standard the relation of the rural community is primary level. They are share the concept, share the views face to face. Okay, their relation is very nearest. That's why we are telling that is a primary relations are found in the rural community. Social homogeneity. Social homogeneity means there is a equally socially and homogeneous means there are transparent to each other, homogeneous. They are living a homogeneous, they are using the same dresses, they are living of standard is same. These rural community peoples are taking the food is same. So living of standard, that is we are saying that generally the living of standard of the rural community peoples is same or homogeneous. That's why the social homogeneity is found in the rural community. Next is significance of family.
significance of family means importance to the family. The rural community peoples giving the importance to a family, and they are like to live in a joint family, and they are generally living in the joint family. We have said that there is a two or more than two generation living in the one roof, below the one roof, that is a joint family, and the big families are found in the rural community. That's why they are giving the significance of family, and they are giving the importance to the family. Next one is the status of women. The status of women are very low in the rural community. They are not having the chance to take the education, and they are not have the chance to join the professions. So the status of women are very low in the rural community. Next is religiosity. Religiosity means the rural community persons or peoples are based on the religions. They are giving the importance to the religions, and they are want the living in the religious persons, and they want to live in the religions. So that's why we are telling that, we are say that there is a religiosity are in the rural persons or rural community. Next is dominance of caste system. The rural persons or rural peoples are giving the importance to the caste. They are like to live in the caste, and they are giving the importance to the caste. In villages we are seeing that the caste wise mohallas and caste wise colonies we are seeing. Means they are living in our caste peoples, and they are want to live in the caste system, and they are rigidly follow the caste system. So here our characteristics is completed. Now for उर्दू. हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी ये सबक हम शुरू कर चुके थे. इसमें जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है देही बिरादरी. देही बिरादरी की एक तारीफ A.W. ग्रीन के ज़रिए दी गई है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर.
देहाती बिरादरी या देही बिरादरी जो लोगों का ऐसा ग्रोह है जो छोटे इलाके में रहता है और अफराद का तर्ज ज़िंदगी यकसा होता है। ये A.W. ग्रीन के ज़रिए तारीफ दी गई। देहाती बिरादरी, हमारे यहाँ देहातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। देहाती बिरादरी हिंदुस्तान में 68.84% यानी इतनी ज़्यादा आबादी, नियर अबाउट 69% कम से कम आबादी जो है हमारी देहातों में रहती है। इसके अलावा 2011 के सेंसस के एतबार से 6.4 लाख लोग, 4 लाख देहात हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और बहुत बड़ी आबादी हमारी देहातों में रहती है। बाकी बची 30% आबादी शहरों में और कबायली बिरादरी की है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है देही बिरादरी की खुसूसियात। देही बिरादरी की खुसूसियात। देही बिरादरी की खुसूसियात में जो पहली खुसूसियत है वो है देहात पजीर बिरादरी। देहात पजीर बिरादरी यानी ऐसी बिरादरी जो देहात में रहना पसंद करती है, देहात में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है। ये बिरादरी ज़्यादातर शहरों की तरफ मुंतकिल नहीं होती और अपने देहात में अपने देहात के एतबार से ही ज़िंदगी को गुजारते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बिरादरी देहात पजीर बिरादरी है। दूसरी खुसूसियत है छोटी जसामत। देहातों की जसामत छोटी होती है। अगर हम रकबे के एतबार से भी देखा जाए तो देहातों की जसामत छोटी होती है और इसके साथ साथ आबादी के हिसाब से भी, आबादी के एतबार से भी जो जसामत होती है देही बिरादरी की वो छोटी होती है। 5000 के अफराद वाले लोगों को हम देहात कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है 5000 अफराद की होनी चाहिए। ज़राअत का गलबा तीसरी खुसूसियत है। देही बिरादरी में ज़राअत का गलबा पाया जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग ज़राअत पर मुंसलिक पेशों पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़राअत या फिर ज़राअत से मुंसलिक पेशे, इनकी पूरी ज़िंदगी, देहाती लोगों की पूरी ज़िंदगी ज़राअत के इर्द गिर्द ही घूमती है। ज़्यादातर लोग ज़राअत का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर ज़राअत से मुंसलिक जो पेशे होते हैं उन्हीं पेशों का काम देहातों में किया जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ज़राअत का गलबा देहाती बिरादरी में होता है। बुनियादी ताल्लुकात। बुनियादी ताल्लुकात, देही बिरादरी में बुनियादी ताल्लुकात पाए जाते हैं। यानी चेहरे के सामने चेहरा डायरेक्टली अपने तौर से बातें की जाती है, अपने तसव्वुरात सामने ही बताए जाते हैं। किसी तरह के कोई सानवी ताल्लुकात नहीं पाए जाते। बुनियादी तौर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देहातों में बुनियादी ताल्लुकात पाए जाते हैं। इसके बाद समाजी यकसानियत। समाजी यकसानियत जो है देही बिरादरी में पाई जाती है। यानी ये लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह का इनका तर्ज ज़िंदगी होता है, एक ही तरह के खाने पीने की अशियाओं का इस्तेमाल
करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देही बिरादरी में समाजी यकसानियत पाई जाती है। अगली खुसूसियत है खानदान को अहमियत। देही बिरादरी के लोग अपनी खानदान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने ही खानदान में रहना पसंद करते हैं। मुश्तरका खानदान का जो तनासुब है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। खानदान को अहमियत देने की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। इसी वजह से खानदान को अहमियत हासिल है देही बिरादरी में। ख़वातीन का दर्जा। ख़वातीन का दर्जा देही बिरादरी में ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन को तालीम हासिल करने की ज़्यादा छूट नहीं होती। इसके अलावा अलग अलग तरह के पेशों पर भी ख़वातीन नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन को पवित्र माना जाता है और उनकी इज़्ज़त का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। मजहबियत। मजहबी तौर पर हम देख सकते हैं कि देही बिरादरी में मज़हब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और मज़हब को बहुत ज़्यादा माना जाता है। मजहबी तौर पर ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और मज़हब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादातर अहमियत हमें देहातों में ही मज़हब पर दिखाई देती है। ज़ात पात के निज़ाम का गलबा। देही बिरादरी में ज़ात पात के निज़ाम को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ज़ात पात के एतबार से ही फैसले किए जाते हैं और ज़ात पात के एतबार से ही ज़िंदगी गुजारी जाती है। हम देहातों में देख सकते हैं कि ज़ात पात के एतबार से ही मोहल्ले बनाए जाते हैं, अलग ज़ात का अलग मोहल्ला होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज़ात पात के निज़ाम का बहुत ज़्यादा गलबा हमें देही बिरादरी में दिखाई देता है। नाउ फॉर मराठी। भारतीय समाजाचे वर्गीकरण हे घटकाची सुरुवात आपण आधीच केली होती। आज जे आपल्याला बघायचं आहे ते आहे ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय व ग्रामीण समुदाय, त्याची व्याख्या A.W. ग्रीन यांनी दिलेली आहे आपल्याला। त्याची व्याख्या आहे, लिहून घ्या तुम्ही। ग्राम समुदाय व ग्रामीण समुदाय लोकांचा असा समूह आहे। ग्राम समुदाय व ग्रामीण समुदाय लोकांचा असा समूह आहे जे कमीत कमी जागेमध्ये राहतो, कमीत कमी जागेमध्ये राहतो आणि त्यांची जगण्याची पद्धत एकच असतो। त्यांची जगण्याची पद्धत एकच असतो। आपल्या भारतामध्ये 68.84 इतके टक्के लोक आपले ग्राम समुदाय व ग्रामीण भागामध्ये राहतात आणि आपल्या भारतामध्ये जे खेडे आहे, जे ग्रामीण भाग आहे ते 6.4 लाख इतके आपल्या भारतामध्ये खेडे आहेत। तर आपल्याला पुढचं जे बघायचं आहे ते आहे ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये।
ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्य म्हणजे मध्ये पहिला जे आहे ते आहे ग्राम समुदाय. ग्रामीण भागाचे लोक हे ग्राम समुदायामध्ये त्यांची राहण्याची आवड असतो आणि तिथूनच राहण्याची त्यांची गरज पण असतो. हे लोक जास्त आपल्याला ग्रामाला व आपल्या खेड्याला, आपल्या गावाला खूप महत्त्व देतात आणि त्या ग्राममध्ये राहण्याची त्यांची एक आवड असते. त्या आवडमध्ये ते आपल्याही ग्राम समुदायामध्ये राहतात. लहान समूह. ग्रामीण समुदाय आकाराने खूप लहान असतो. ते भौगोलिक भागामध्ये पण आपण बघितला तर त्यांचा भौगोलिक भाग पण लहान असतो आणि आकाराने जनसंख्या आधाराने त्यांचा आपण जनसंख्या बघितली तर 5000 पेक्षा कमी जनसंख्या असलेला जे गाव असेल त्यालाच आपण खेडा व गाव म्हणू शकतात. तर आकार जे असते ग्रामीण समुदायाचा हे खूप लहान असतो आणि त्याच आपल्याला दिलेलं आहे वैशिष्ट्य की हे लहान समूह असते. त्याच्यानंतर कृषी क्षेत्राचे वर्चस्व. ग्रामीण भागामध्ये कृषी क्षेत्राचे वर्चस्व आहे. तिथे लोक 80% लोक कृषीवर आधारित असते आणि जे 20% लोक आहे ते कृषीवर आधारित जे दुसरे काम असते ते पण करत असतात. तर हे ग्रामीण समुदाय पूर्णतः आपण म्हणू शकता की कृषीवर आधारित असतो. प्राथमिक संबंध. ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला असं दिसून येते की इतके लोक प्राथमिक संबंधावरून जोडलेले असतात. ते आपले विचार व आपले विमर्श डायरेक्ट भेटून आपल्या लोकांना सांगत असतात. तर ह्याला आपण म्हणू शकता की ग्रामीण भागामध्ये संबंध कसे असतात, प्राथमिक दर्जाचे असतात, दुय्यम दर्जाचे नसतात. त्याच्यानंतर आपण सामाजिक एकजिन्सीपणा. सामाजिक एकजिन्सीपणा. ग्रामीण समुदायामध्ये सामाजिक एकजिन्सीपणा दिसून येते. तितके लोक आपल्या राहण्याची पद्धत जी असते त्यांची एकच सारखी असते. त्यांचे जेवणाचे जे पदार्थ असतात, जेवणाचे पदार्थ पण एकच पद्धतीचे असतात आणि त्यांच्या कपड्या घालण्याची पद्धत जी असते ते पण एकच सारखी असते. तर आपण बोलू शकतात की ग्रामीण समुदायामध्ये सामाजिक एकजिन्सीपणा दिसून येते. कुटुंबाला महत्त्व. ग्रामीण समुदायामध्ये कुटुंबाला खूप महत्त्व असतात. ते आपल्या कुटुंबामध्ये राहणं त्यांना आवडतात आणि कुटुंबामध्ये त्यांना खूप आपली आवड असते. जिथे आपण बघू शकता की लोक जे आहे ते एकच कुटुंबामध्ये राहण्याला प्राधान्य देतात आणि एकच कुटुंबाला आपल्याला आवडत त्यांची असतात. तर ते कुटुंबाला खूप महत्त्व देतात आणि आपल्या कुटुंबाचे लोकांना पण खूप महत्त्व देतात.
स्त्रियांचे स्थान. स्त्रियांचे स्थान ग्रामीण समुदायामध्ये खूप निम्न पद्धतीचे आहे. तिथे स्त्रियांना शिक्षण घेण्याची परवानगी न असते, उच्च शिक्षण घेण्याची, आणि त्याच्यानंतर त्यांना बाहेर काम करण्याची पण परवानगी न असते. तर पण इथे स्त्रियांना पवित्र असा मानले जाते आणि त्यांचे रक्षण पण केले जाते. तर स्त्रियांचे स्थान इथे खूप निम्न पद्धतीचे असते. त्याच्यानंतर आहे धर्मश्रद्धा. धर्मश्रद्धा कसली? इथे आपण बघू शकता की धर्मश्रद्धा जे आहे ते